Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 12 political science, we are reading the chapter Challenges to Nation Building. In this chapter right now we are discussing the topic reorganization of the states. Now we have read till this paragraph in which we were discussing in 1956 there were 14 states were created and 6 union territories. Now we will read further. Before proceeding further, we have to look at this particular cartoon in which what it is showing. This is the multi-language, means thousands of languages and dialects which are being spoken in our country. How it will fit in this narrow shape of an state reorganization committee report, means in a such distinguishing of 14 states, how these multi-linguistic country will fit in. That is all it is about. Now we will read further. One of the most important concerns in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of the country. The very first thing which the forefathers or even the leaders thought about was that if we provide separate states we will encourage the demands for the separate state, it will somehow harm the unity of the country. It will endanger the unity of the country. It was felt that the linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation. That means अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे सेपरेटिज्म लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे, तो अल्टीमेटली क्या लेके आएगा? इट विल रिजल्ट इन सेपरेटिज्म, अलगाववाद लेके आएगा एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन. और नया देश जो हमारा न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके ऊपर ये प्रेशर लाएगा. But the leadership under the popular pressure finally made a choice in the favor of linguistic states. But even इतना कुछ concern होने के बावजूद हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया? We took the choice of favoring the linguistic states. हमने linguistic states को फेवर किया कि ठीक है, we will divide the whole country in on the basis of language. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. और इसके पीछे भी जो रीजन था वो ये था कि अगर हम इनको बढ़ावा भी देते हैं, अगर इनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन इनको मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा जो थ्रेट है उसको हम कम कर रहे हैं, ना कि बढ़ा रहे हैं. सेपरेटिज्म होने के चांसेस तब ज़्यादा हैं जब उनकी डिमांड्स, उनके ओपिनियन, उनके जो कोई भी डिज़ायर्स हैं उनको अगर हम दबाएंगे तो अल्टीमेटली दे विल लीड टू एनी वायलेंस और अ काइंड ऑफ सेपरेटिज्म आप कह सकते हैं. पेसिमिस्टिक जो व्यू था वो ये था कि हमें इसको दबाना चाहिए, जबकि ऑप्टिमिस्टिक ये था कि अगर हम सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे, सबका एक प्रॉपर लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा थ्रू सेपरेट स्टेट, तो ये अल्टीमेटली जो सेपरेटिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा. Besides accommodation of regional demands and formation of linguistic states were also seen as more democratic. और इसको more democratic मतलब इसका मिला, इसको जो मीनिंग मिली वो more democratic की मिली कि ये और लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है. Now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. We can say that linguistic states and movement for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो ये 50 साल लगभग हो गए, राइट ऑन मोर देन 60 ईयर्स हो गए हैं, तो इनके फॉर्मेशन की वजह से ये फ़ायदा हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से कि हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स था, जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीति थी, उसके अंदर बहुत से चेंज हुए हैं और कुछ बेसिक चेंज भी हुए हैं. द पार्ट टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट. और ये जो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ आई है, रीजनल डाइवर्सिटी, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कोई जो सोशल एलिट्स थे, जो पॉलिटिकल एलिट्स थे, जो समहाउ हमेशा रूल कर रहे थे, समहाउ कंट्रोल कर रहे थे किसके ऊपर? पूरे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे. अब उनसे हट के ये पूरे देश में बैठ चुकी है. पूरे रीजनल जितने भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं और उनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, न कि केवल जो पॉलिटिकल एलिट्स थे, जो इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स थे. Linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. और linguistic reorganization क्या देता है? Linguistic reorganization की वजह से होता है कि एक यूनिफॉर्म बेसिस मिलता है कि if we want to divide any state or we want to create any new state, what should be the base?
क्या बेस होना चाहिए, क्या फॉर्मेशन का बेस होना चाहिए। तो ये लिंग्विस्टिक एक बहुत बड़ा, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बॉन्ड बना इस चीज़ को करने में। नाउ इट डिड नॉट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी हैड फियर्ड अर्लियर। और जैसा कि लोग डर रहे थे कि अगर हम ऐसा लिंग्विस्टिक बेसिस पे देश का डिवीजन करेंगे, इंडिया का डिवीजन करेंगे, तो इट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन, इस सेपरेटिज्म की ओर बढ़ावा देगा। बट ऐसा होता नहीं, रिजल्ट ऐसा नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथन द नेशनलिटी, जबकि ठीक इसके उल्टा होता है। क्या हो रहा है, ये इंडिया को और स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडिया को और मजबूत बना रहा है। Above all, the linguistic states underline the acceptance of the principle of diversity। और ये क्या कर रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या अंडरलाइन कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, हम अपने देश की डाइवर्सिटी को रिकॉग्निशन दे रहे हैं। वी आर गिविंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड रिकॉग्निशन टू द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections। जब हम कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, इंडिया ने समहाउ इनकलकेट किया है डेमोक्रेसी को, तो इसका मतलब नहीं होता है कि हमने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बस बना दिया या एक फॉर्मल इलेक्शन का तरीका अपना लिया। हमने रियल सेंस में डेमोक्रेसी को लाया है थ्रू सच डाइवर्स प्रिंसिपल्स, जो हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हर स्टेट के हर रीजन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। दैट इज़ द ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। The choice was larger than that. It was a choice in the favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional। और हम क्या कर रहे हैं, we are right now recognizing, हम उनको पहचान रहे हैं, even accepting their existence, उनके existence को हम accept कर रहे हैं कि now they are a little different from us, हम सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हैं, and we are recognizing that as well as we are accepting the existence, उनको representation भी हो रहा है even। That is called the true democracy। Democracy, in other words, was associated with the plurality of ideas and way of life। और डेमोक्रेसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है that we have plurality, बहुत तरह के आइडियाज़ हमारे पास हैं एंड बहुत तरह के जीवन जीने की शैली है हमारी, वेज ऑफ लाइफ। दैट इज ट्रू डेमोक्रेसी। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। और बाद में जितनी भी पॉलिटिक्स होती है वो इसी फ्रेमवर्क में काम करती है। इवन टुडे आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर किसी स्टेट में विजिट करने जाते हैं तो ही ट्राई टू लुक लाइक देम एट लीस्ट, एंड इवन दे ट्राई टू स्पीक अ लिटिल like if Mr. Narendra Modi visit to Arunachal Pradesh, he may speak the local language, the local dialect. In the same way he try to dress up like Arunachal people, उनके जैसा ड्रेसअप होने का। ये क्या दिखाता है, वी आर रिस्पेक्टिंग, वी आर रिकॉग्नाइजिंग देयर एग्जिस्टेंस एंड वी आर रिस्पेक्टिंग देयर डिफरेंसेज और ईच अदर डिफरेंसेज। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और यही पूरा फ्रेमवर्क चेंज कर दे रहा है आगे के पॉलिटिक्स का। अगर इंडिया में अगर आपको राइट नाउ अगर आपको वाकई में एक ट्रू लीडर बनना है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट वी ऑल आर डिफरेंट। सबकी अपने आइडियाज़ हैं, सबकी वेज ऑफ लाइफ हैं। नाउ so students, this was all about this chapter. I think we have completed this chapter, and today I will give you some notes of this topic, even the some homework regarding this topic, but you have to give me the answer of these two questions as a homework. So students, that's all for today. Thank you so much.